Everyone, online classes, class 9th, subject economics, chapter 2, part 1, people as resource, संसाधन के रूप में लोग, overview, अवलोकन. The chapter people as resource is an effort to explain populations as an asset for the economics rather than a liability. People becomes human capital when there is investment made in the form of education, training, and medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है. जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है. वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है. पीपल एज रिसोर्स is a way of referring to the country working people in terms of their existing productive skills and abilities. Looking at the population from this productive asset emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product like other resource. Population also is a resource, a human resource. This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education, and access to health faculties. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country, just like physical capital formation. अब संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है. उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है. दूसरे संसाधनों की भांति भी ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन. यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय. जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तो तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है. Investment in human capital, thought, education, training, medical care yields a return just like investment in physical capital. This can be seen directly in the form of higher incomes earned becomes of higher productivity of the more educated or the better trained persons, as well as the higher productivity of healthier people. मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है. अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाले अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है. India's Green Revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resource. India's IT revolution is a striking extension of
how the importance of human capital has come to acquire a higher positions than that of material plant and machinery। भारत में हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकियों के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिकी मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। Not only do the more educated and the healthier people gain thought higher income, society also gains in other indirect ways because the advantage of a more educated or a healthier population spread to those also who themselves were not directly educated of given health care। अब उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों का लाभ होता है बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं होते या उतनी स्वस्थ सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई है। In fact, human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital. Human resource can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकते हैं, भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकती है। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया ए लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन considered a liability rather than an asset, but a large populations need not be a burden for the economy. It can be turned into a productivity asset by investment in human capital, for example by spending resource on education and health for all, training of industrial and agriculture workers in the use of modern technology, useful scientific research and soon। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या का एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि यह एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा होता है। The two following cases illustrate how people can try to become a more productivity resource। निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनाने का प्रयास करते हैं। In the two cases studies, we say Sakal went to school and Vilas did not go. Sakal was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor frequently. Vilas was a parent of arthritis. He lacked the means to visit the doctor. Sakal acquired a degree in computer programming. Sakal found a job in a private firm while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a meager income like his mother to support a family। अब इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन से हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। सकल शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट और स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर
के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बिलास गठिया का रोगी था, उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। बिलास वही काम करता था और जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की ही तरह परिवार को पालन पोषण के लिए उसकी आय बहुत कम थी। In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. This enhanced his productivity added to the growth of the economy. This is a turned pay on individuals thought salary or in the some other form of his choice. In case of Bilas, there could not be any education or health care in the early part of his life. He spent his life selling fish like his mother. Henceforth, he draw the some salary of unskilled laborers as his mother. शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसकी श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। बिलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की भांति ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता था, इसलिए वह अपनी माँ के ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स in education and medical care can give high rates of return in future. This investment on people is the same as investment in land and capital. मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश में भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी के में निवेश की ही तरह है। व्यक्ति शेयरों तथा ब्रांडों में भविष्य में उच्च प्रतिफल की आशा में निवेश करता है। A child too with investment made on her education and health can yield a high return in futures in the form of higher earning and greater contributions to the society. Educated parents are found to invest more heavily on the education of their child. This is because they have realized the importance of education for themselves. They are also conscious of proper nutrition and hygiene. They accordingly look after their children's need for education at school and good health. A virtuous cycle is thus created in this case. In contrast, a vicious cycle might be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged stage. अब एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय और समाज को बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। वह यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा का महत्व को अनुभव किया होता है। वह उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति सचेत होते हैं। इस प्रकार वह अपने बच्चों में स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इसी तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चे को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। Countries like Japan have invested in human resource. They did not have any natural resource. These countries
are developed rich, they import the natural resource needed in their country. How did they become rich developed? They have invested on people, especially in the field of education and health. These people have made efficient use of other resources like land and capital efficiency, and the technology evolved by people have made these countries rich developed. जापान जैसे देशों में मानव संसाधन पर निवेश किया है। उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। वह विकसित धनी देश है। वह अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वह कैसे धनी विकसित बने? उन्होंने लोगों को विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। इन लोगों ने कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की। उसी से यह देश धनी और विकसित बना। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन। पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. We saw that Vilas sold fish and Sakal got a job in the firm. The various activities have been classified into three main sectors. Example: primary, secondary, and tertiary. Primary sector includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry, farming, mining and quarrying. Manufacturing is included in the secondary sector. Trade, transport, communications, banking, education, health, tourism, services, insurance, etc. are included in the tertiary sector. The activities in this sector result in the production of goods and services. These activities add value of the national income. These activities are called economic activities. Economic activities have two parts: market activities and non-market activities. Market activities involve remunerations to anyone who performs an activity performed for a pay or profit. These include production of goods or services, including government services. Non-market activities are the productions for self-consumption. These can be consumptions and processing of primary product and on account productions of fixed assets. बिलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा है कि बिलास मछलियां बेचता था और शकल को एक फॉर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों में तीन प्रमुख क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है, जो अब बिलास की मां गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता था जब वह श्रम बाजार में प्रवेश करती थी। उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती थी। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहयोग करती थी। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं को कम पारिश्रमिक दिया जाता था। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती थी जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती थी तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र के विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन नहीं मिलता है।
जो उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने समान नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है, जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछें कि वह क्या बनना चाहती हैं। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशंस, जनसंख्या की गुणवत्ता। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, health of a persons indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. The quality of the populations ultimately decides the growth rate of the country. Literate and healthy populations are an asset. जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वस्थ और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। निरक्षर और स्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्ति होती है। थैंक यू।